Good morning students. Today we are going to start our second chapter, biological classification. So what is biological classification? It is the process of grouping the organisms according to certain similarities. कुछ similarities के basis पे जब organisms की grouping की जाती है तो उसे classification कहा जाता है. So the scientist who proposed the first biological classification was Linnaeus. जो लीनियस साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था और ये जो क्लासिफिकेशन थे ये था 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू एनिमल किंगडम दैट इज एनिमीलिया, प्लांट किंगडम दैट इज प्लांटे. बट देयर वर सर्टेन लिमिटेशन एसोसिएटेड विद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो ये जो लिमिटेशंस थी ये क्या थी कि इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Later the scientist R.H. Whittaker proposed the improved classification system and he proposed the 5 kingdom of classification, and the kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The classification was based on thallus organization, cell structure, mode of nutrition, phylogenetic relationship and reproduction. So this is the representation of 5 kingdom of classification. First one is Monera, in which bacteria is included. Second is kingdom Protista, third is kingdom Fungi, fourth is kingdom Plantae and fifth is kingdom Animalia. So now we study the first kingdom, that is kingdom Monera. The sole member of kingdom Monera is bacteria. Kingdom Monera में bacteria include होते हैं and they are the most abundant microorganisms. Occur almost everywhere including extreme environments such as hot spring, oceans, snow and deserts. Many live in or on other organisms as parasite. Bacteria can be divided into 4 groups on the basis of their shapes. So first, the spherical shape is called as cocci, rod shape is called as bacilli, comma shape is called as vibrio and spiral shape is called as spirilla. तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं, शेप्स हैं बैक्टीरिया के, कि जो ये स्फेरिकल शेप है ये कोकई कहलाता है, रॉड शेप बैसिलई, कॉमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरल शेप स्पाइरिला. सेल स्ट्रक्चर जो होती हैं बैक्टीरिया की बहुत ही सिंपल होती है लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. On the basis of mode of nutrition, bacteria can be divided into 2 groups, that is autotrophic and heterotrophic. We know that autotrophic nutrition is that the organism prepare their own food, and heterotrophic nutrition, the organisms obtain their food from other living organisms. So at autotrophic nutrition further divided into 2 types, chemosynthetic and photosynthetic. तो जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप्स के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक. पैरासिटिक बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज होस्ट विदाउट किलिंग इट. एंड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रॉटन सब्सटेंसेस. Bacteria can be divided into archibacteria and eubacteria. Archibacteria are unique because they live in the most harshy habitats. Bacteria based on habitat can be named as halophiles, thermoacidophilus and methanogens. Halophiles are those bacteria which live in most
मोस्टली हार्श सॉल्टी एरियाज, ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं वो हेलोफाइल्स कहलाते हैं। एंड ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं थर्मोएसिडोफिलस कहलाते हैं। एंड दोज बैक्टीरिया विच सर्वाइव ऑन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। They are different from other bacteria in having a different cell wall structure which makes them capable to survive in this extreme condition. तो ये जो बैक्टीरिया हैं हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिलस एंड मिथेनोजेंस, ये इतने एक्सट्रीम जो हार्श कंडीशंस हैं इनमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो रीज़न ये है कि इनकी जो सेल वॉल होती है अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती हैं। एंड ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहलाते हैं रूमिनेंट्स, यानी जितनी भी कैटल्स होती हैं, काउ, बफेलो, ये रूमिनेंट्स कहलाती हैं और मिथेनोजेंस इनके गट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मिथेनोजेंस है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए, जिसे हम कहते हैं बायोगैस। और जो बायोगैस का प्रोडक्शन है इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है डंग, इसी से प्रोड्यूस किया जाता है। Other is eubacteria which is called as true bacteria, and the characteristic features of these bacteria are that they have rigid cell wall and if they are motile flagella is present. So the eubacteria can be divided into cyanobacteria and chemosynthetic autotroph. तो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होगा वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, और ये सिमिलर होता है जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे। ये सिंगल सेल होते हैं, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, ये बोथ मेराइन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनकी जो कॉलोनीज होती है यूबैक्टीरिया की सराउंडेड होती है जिलेटिनियस शीट से, इन पे एक जिलेटिन की कवरिंग बन जाती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का वर्क करते हैं, इन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके नॉस्टॉक एंड एनाबीना। सम साइनोबैक्टीरिया कंटेन पिगमेंट इन द membranous extensions called chromatophores। तो जो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। कुछ साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, हॉर्मोसिस्ट होते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रेजेंट होगा ग्रैनुलेटेड सेल्स की रॉ होती हैं विच इज़ सराउंडेड बाय थिक शीट, और ये क्या होती है एक थिक कवरिंग से कवर्ड रहती हैं। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, play a key role in recycling nutrients such as nitrogen, sulfur, iron etc. ये जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं नेचर में, मोस्ट अबंडेंट होंगे नेचर में, और ये क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एट्सेट्रा, इन सब वर्क में ये हेल्प करते हैं। कुछ क्या होते हैं पैथोजेंस होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करेंगे, क्रॉप्स में, कैटल्स में एंड पेट्स में उनको ये हार्म करते हैं। इन ह्यूमंस दे कॉज डिजीजेस सच एज कोलेरा, टाइफॉइड, वाइल दे कॉज सिट्रस कैंकर इन क्रॉप प्लांट्स एंड एंथ्रेक्स इन कैटल। ये डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। जो यूबैक्टीरिया का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज माइकोप्लाज्मा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर
डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। मैनी आर पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करने का वर्क करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्रोसेस हैं। रिप्रोडक्शन इज डन बाय एसेक्सुअली, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली फ्यूजन के थ्रू होगा। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड हो रहा है, और ये जो डिवीजन है ये फ्यूजन है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ, फर्दर इसमें साइटोप्लाज्म क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो बैक्टीरिया फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे ये फॉर्मेशन कर देता है स्पोर्स का, और इसके थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये जो है टेक्स प्लेस इन अ प्रिमिटिव वे में फॉर्म होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो डीएनए है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, इसमें जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्राइमरी एक्वेटिक, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी हैबिटेट इनका एक्वेटिक है। सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, वे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसमें सेल इन्वॉल्व होंगे, फ्यूजन्स होंगे सेल के, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको डिवाइड किया गया है कुछ क्लासेस में, एंड द क्लासेस आर क्राइसोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoan. So now first we discuss about the class chrysophytes, which is called as planktons. It includes diatoms and golden algae. क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गे आते हैं। गोल्डन एल्गे को डेस्माइट्स भी कह सकते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है ये फ्रेश वाटर होते हैं, और इसके साथ साथ ये मेराइन भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट में ये फ्लोट करते रहते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी न्यूट्रिशन इनका क्या है, ऑटोट्रॉफिक। We know that chrysophytes include diatom. This is the diagram of diatom. And the cell wall form two thin overlapping shells. कि जो सेल वॉल होती है वो दो शेल्स आपस में ओवरलैपिंग करती हैं, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और जो वॉल होती है वो एम्बेडेड होती है विद सिलिका एंड दस इंडिस्ट्रक्टिबल, तो इसलिए इसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जो फॉसिलाइज्ड रिमेन्स होते हैं डायटम्स के आर रिफर टू एज डाईएटोमेशियस अर्थ, इनको हम डाईएटोमेशियस अर्थ कहते हैं। दैट मीन्स कि जो डायटम्स होते हैं कि दे हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, एंड ये जो एक्यूमुलेशन होता है इसका यही कहलाता है डाईएटोमेशियस अर्थ। ये जो डायटम्स होते हैं दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड ऑक्सोस्पोर्स विच आर प्रेजेंट and helps in growth and sexual reproduction. So the next chrysophytes are dinoflagellates. So the dinoflagellates are marine and photosynthetic. तो हैबिटेट जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स का वो मेराइन हैबिटेट है, एंड जो उसका न्यूट्रिशन है वो कैसा है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ये परफॉर्म करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसी के बेसिस पे इनको कलर मिलते हैं। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती हैं।
मोस्ट जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा और सेकंड फ्लैजिला ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है बिटवीन द वॉल प्लेट्स। रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गोनायोलेक्स, और ये क्या करता है, बहुत ही फास्टली मल्टीप्लिकेशन करता है और फॉर्म करता है रेड टाइड्स का। जो हम सीज में रेड कलर के जो सरफेस देखते हैं वो रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। इनसे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत से जो मेराइन एनिमल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। It is the example of dinoflagellates. It have one longitudinal flagella and one transverse flagella. Next class is euglenoid. They are freshwater organisms found in stagnant water. ये रुके हुए पानी में पाए जाते हैं. Have protein rich layer called pellicle instead of cell wall, which makes their बॉडी फ्लेक्सिबल। तो ये जो पैलिकल है इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉप्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप एंड दे अटैक ऑन सिमिलर जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर अटैक करते हैं। तो प्रिडिएशन का वर्क करते हैं ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट में। तो पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास इज स्लाइम मोल्ड। दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इनका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है और ये डेड और जो डिकेइंग ट्विंग्स हैं, लीव्स हैं, उनसे ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये एक ग्रुपिंग बना लेते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये सेवरल फीट तक क्या करती है, ग्रो कर जाती है, स्प्रेड हो जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर फॉर्मेशन करता है फ्रूटिंग बॉडीज़ का, और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं इनके टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कोई भी जो मैटर है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, इसीलिए ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं इनके ये डिस्पर्स हो जाते हैं बाय द एयर करंट्स। Next class is protozoans. Mode of nutrition is heterotrophic, live as predators और parasitic. Parasitic nutrition परफॉर्म करते हैं, predator की तरह सर्वाइव करते हैं और ऐसा माना जाता है कि they are the primitive relatives of animals. So protozoans are divided into amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. सो जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर में भी प्रेजेंट होंगे और मॉइस्ट सॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ये एक फॉल्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इसी से मूवमेंट करेंगे और इसी से अपने फूड को ये कैप्चर करेंगे। एग्जाम्पल है अमीबा। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मेराइन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं उनकी सेल सरफेस पे जो होती है वो सिलिका प्रेजेंट होती है, तो जो उनकी सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती हैं। सम ऑफ देम एग्जाम्पल है इसमें एंट अमीबा, ये एक पैरासाइट होता है। सम प्रोटोजोअन्स, कुछ प्रोटोजोअन के एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल साइटोप्लाज्म में, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है एक्सक्रिएशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। जो भी वेस्ट है बॉडी का उसको वो रिलीज़ करने में हेल्प करेगा एंड वाटर के कंडक्शन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। तो ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन्स होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और ये जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है वो कॉज करता है प्रोटोजोवन ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोवन्स। ये एक्वेटिक होते हैं और बहुत ही फास्ट मूव करते हैं।
शो प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनकी बॉडी पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इनमें एक कैविटी होती है जिसे गलेट कहते हैं, विच ओपन्स ऑन द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ खुलती है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो सीलिया का जो मूवमेंट है वो क्या कॉज करता है, फूड लेडन वाटर टू एंटर द गलेट, कि यहाँ से जो फूड है वो वाटर से, ये जो गलेट है जो माउथ है इसमें ये एंटर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है इसके पैरामीशियम, कुछ जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स हैं जैसे कि पैरामीशियम में, इसमें क्या होगा, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है एंड जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एंड जो लास्ट इसमें टॉपिक है प्रोटोजोअन्स का, स्पोरोजोअन्स। जो स्पोरोजोअन्स होते हैं इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स विद स्पोर्स लाइक इन्फेक्शियस स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसमें एक इन्फेक्शियस स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं जो स्पोर्स में होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है।